Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Again welcome back to your own channel Bright Future with Mathematics. Hopefully you are all well and spending your holidays in a well manner way of study. So hopefully I wish that you will promote my channel for your facility, for my facility also. So start with the lecture of the day. So today our lecture is the rule number 7. Rule number 7 is derivative power rule for negative integers. So power rule for negative integer, this is the topic of the day. I will discuss this with you. So hopefully you will learn more and more with that facility. So start power rule. Power rule for negative integers. We already discussed about the power rule for positive integer. I think that is the rule number 1. We already discussed that. So start with the statement. If n is a negative integer and x is not equal to 0, then if n is a negative integer, we suppose that n is a negative integer and x is not equal to 0, then the mathematical form is d over dx x की power n is equal to n x की power n minus 1, where x is not equal to 0. So this is the statement of this rule. The difference is only that in power rule for positive integer where n is a positive integer, in for negative integer where n is a negative integer. This is the difference. The formula is same for both. Now we will discuss about the proof of this rule. So for the proof of this rule, we will start. So proof for the proof where we will define that if n is a negative integer, then हम उसको suppose करेंगे कि वो किसी एक negative integer के equal है. So if n is a negative integer n is equal to minus m, ठीक है, n is equal to minus m where m is a positive integer, So if n is a negative integer, we can write as n is equal to minus m. So where m is a positive integer, the sign indicates that n is a negative integer. Now we can write as
x की पावर, this implies that x की पावर n is equal to x की पावर minus m. We can write it as in fraction x की पावर 1 over x की पावर m. In fraction we can write this positive in positive integer. So now we will use the quotient rule for the solution of this. So we can write, this implies that d over dx x की पावर n is equal to d over dx 1 over x की पावर m. So we have a quotient 1 over x की पावर m. We will use the quotient rule for the proof of this rule. So using quotient rule, so right hand side is equal to, क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शन में है उसका सबसे पहले हम स्क्वायर लिखते हैं. तो फ्रैक्शन में सबसे पहले उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो x की पावर m स्क्वायर. नो जो फ्रैक्शन में हो उसको ऊपर जाके एज इट इज़ लिख देते हैं, तो x की पावर m एज इट इज़, और जो ऊपर वाला है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर dx 1 का डेरिवेटिव, आगे फार्मूला में माइनस. सो उससे आगे क्या है, जो ऊपर वाला है हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और जो फ्रैक्शन में है बटे में है उसको हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m. तो ये क्वेश्चन रूल है. अब हम इस रूल को जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको ये फॉर्म बन जाएगी. सो x की पावर m एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज इन अर्लियर रूल वी हैव लर्न दैट एनी कांस्टेंट नंबर, if we find the derivative of any constant number then it will be 0. So derivative of all constant is always 0. So 0 and minus 1 into derivative of x की पावर m. So पावर रूल अप्लाई करते हैं. पावर रूल में पावर स्टार्टिंग पे, और पावर में से एक जो है हम कम कर देते हैं, और फिर नीचे जो है इसका स्क्वायर लें फ्रैक्शन का, तो ये 2m. अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो ये 0 माइनस, और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो ये m जो है ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस m x की पावर m माइनस 1. सो फ्रैक्शन में x की पावर 2m. अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं. तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ. तो ये जो है फ्रैक्शन में इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये प्लस 2m है, तो ऊपर जाकर माइनस 2m होगा. तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस m x की पावर m माइनस 1 इंटू x की पावर माइनस 2m. दिस इम्प्लाइज माइनस m, और ये आपस में कोई भी जो है हमारे पास बेस अगर किसी भी वेरिएबल की इक्वल हैं तो वो आपस में उनकी पावरें ऐड अप होती हैं. तो इसकी पावर जो है आपस में ऐड होंगी, तो इसको लिख सकते हैं x की m माइनस 1 माइनस 2m, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, माइनस m, और ये पावर जो है ये कम हो जाएगी, तो
-m-1। अब जो है हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग पे सपोज किया था कि n इज़ इक्वल टू -m, तो अब हम उस रीज़न को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू n x की पावर n माइनस m, बिकॉज यहाँ पे रीज़न देंगे बिकॉज n इज़ इक्वल टू -m। सो यही हमने जो है प्रूव करना था। आप देख सकते हैं पावर रूल में कि ये इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इसके इक्वल आता है और ये हमने प्रूव कर दिया। तो लास्ट में हमने रीज़न यूज़ करनी है कि n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। इस तरह जो है हम इसका प्रूफ हमने गेन कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हम कुछ क्वेश्चन जो है इस रूल को यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है w इज़ इक्वल टू 3z की पावर -2 -1 ओवर z। w क्वेश्चन है w इज़ इक्वल टू 3z की पावर -2 -1 ओवर z। तो इक्वेशन से जो है हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर की इक्वेशन है। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें w इज़ इक्वल दिस इम्प्लाइज w इज़ इक्वल टू 3z की पावर -2 माइनस z की पावर -1। z को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो इसकी फ्रैक्शन ख़त्म कर दें तो ये z की पावर -1 बन जाएगा। तो इससे आगे जो है हम अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट with respect to z because in this equation we have the variable z. So with respect to z हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dw over dz is equal to left hand side is equal to d over dz into 3z की पावर -2 इन माइनस z की पावर -1। सो अब इसको जो है हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, इसका डेरिवेटिव जो है फाइंड आउट करें। तो इसको जो है हम अलग अलग से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d ओवर dz इंटू 3z की पावर -2 और माइनस और d ओवर dz इंटू z की पावर -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको नेक्स्ट जो है इधर लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है उसका नेक्स्ट स्टेप को इस तरह लिखेंगे, उसको अलग अलग से पहले को कॉन्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ dw ओवर dz इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहला जो है आप देख सकते हैं इसको कांस्टेंट मल्टीपल रूल जो है यूज़ करेंगे। कांस्टेंट स्टार्टिंग पे आ जाएगा तो 3 स्टार्टिंग पे। अब उसको जो है हम पावर रूल से सॉल्व करेंगे तो z की पावर -2 है तो -2 स्टार्टिंग पे और z की पावर 2 -1 एक पावर कम कर दी, इसी तरह माइनस है और पावर जो है स्टार्टिंग पे और पावर में से एक जो है हमने कम करना है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 और z की पावर -3 और इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और z की पावर -2। अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं -6 ओवर z की पावर -3 और +1 ओवर z की पावर 2। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन थी, एक फंक्शन था। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग
वी हैव द सोल्यूशन दैट -6/(z⁻³ +1/(z⁻²) ये माइनस नहीं प्लस आएगा और इसी तरह ये 1/(z⁻²). तो ये जो है हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया पावर रूल फॉर नेगेटिव इंटीजर को यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है S = mn। बेटा आराम से आपने जो है इसको टच करना है 5 मिनट बाद, आराम से। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन S = -2t⁻⁻1 + 4/t⁻²। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है S = -2t⁻⁻1 और +4/t⁻², t⁻²। तो t⁻²। अब अगेन हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने लेके क्या करना है, नेगेटिव रूल के लिए जो पावर हमने डिफ़ाइन किया है उसको यूज़ करते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। S = -2t⁻⁻1 + 4/t⁻²। अब जो है ये होल इक्वेशन जो है, होल फंक्शन एक हमारे पास नेगेटिव वेरिएबल में है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव जो नेगेटिव इंटीजर है इसमें, और ये वेरिएबल इसमें t है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेफ़्ट साइड विल बी इक्वल टू ds/dt इज़ इक्वल टू d/dt इंटू होल फंक्शन -2t⁻⁻1 + 4/t⁻²। अब अगेन इसी तरह हमने अलग अलग से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो d/dt इंटू -2t⁻⁻1 और प्लस कांस्टेंट स्टार्टिंग पे d/dt इंटू t⁻²। अब इसको मज़ीद जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस साइड पे आ जाएं। अब तो इस साइड पे जो है आ जाते हैं। उससे नेक्स्ट जो है लेफ़्ट साइड विल बी इक्वल टू ds/dt इज़ इक्वल टू, उसको कांस्टेंट मल्टीपल रूल से सॉल्व करें तो -2 पहले ही है, कांस्टेंट है। पावर रूल यूज़ करें -1 स्टार्टिंग पे, उसकी पावर में से एक जो है हम कम करेंगे, फिर कांस्टेंट को एज इट इज़ लिखना है, पावर में स्टार्टिंग पे आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस प्लस 2t⁻⁻2 और इसी तरह प्लस माइनस -8t⁻⁻3। अब इसका एक और हम स्टेप लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -8/t⁻3। तो ये हमारे पास फंक्शन था एक, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने ये इसका आंसर फाइंड आउट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि हम जितने भी हमने रूल पढ़े हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, और उम्मीद है अल्लाह करे आपको जितना भी इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होंगे हम उतना ही उसको गेन करेंगे। तो एक और जो है मैं क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है हो जाए। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन है y = 4 - 2/x - x⁻³ तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको यहाँ पे राइट करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2/x और प्लस x की पावर -3। तो ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको जो है उसी तरह इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर -1 और प्लस x की पावर -3। अब जो है ये हमारे पास इक्वेशन है कि पॉलिनोमियल है, ये नेगेटिव में है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू होल इक्वेशन 4 माइनस 2x की पावर -1 प्लस x की पावर -3। तो अब अलग अलग से इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। d ओवर dx 4 माइनस इक्वेशन में है d ओवर dx 2x की पावर -1 और प्लस d ओवर dx और x की पावर -3। तो अब इसको नेक्स्ट जो है मूव करते हैं इस साइड पे। जी नेक्स्ट साइड पे आ जाएं। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू राइट साइड। और राइट साइड कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है 0 है तो 0 आ जाएगा। 0 माइनस कांस्टेंट स्टार्टिंग पे है, पावर स्टार्टिंग पे आ जाएगी, पावर यूज़ करेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है उसकी पावर स्टार्टिंग पे आ जाएगी, पावर में से एक जो है कम कर देंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस x की पावर -2 और प्लस माइनस माइनस x की पावर -4। तो ये हमने इस पोलिनोमियल का जो है ये डेरिवेटिव फाइंड जो किया है ये है हमारे पास। तो कुछ क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, आपने जो है उसको ट्राई करना है। तो चेक आउट दीज क्वेश्चन इन एट योर होम। सो आई एम राइटिंग दीज क्वेश्चन फॉर यू। सो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 1/3s की पावर 2 और -5/2s। r इज इक्वल टू 1/3s की पावर 2 और प्लस -5/2s। इसको आपने जो है घर पे इसको ट्राई करना है। तो इसी तरह और क्वेश्चन है और है r इज इक्वल टू, इसको चले मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको जो है मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका सलूशन में हम इसको लिखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद r इज इक्वल टू 1 की बजाय हम लिख लेंगे 1 या इसको 1/3s की पावर -2 और -5/2s की पावर -1। तो अब ये एक सिंपल फॉर्म बन गई है। इसको जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास s में है तो s के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s। सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू dr ओवर ds इज इक्वल टू राइट साइड d ओवर ds इंटू होल टर्म्स 1/3s की पावर -2 और
अलग अलग से डेरिवेटिव फाइंड करना है, -5/2 d/ds इन 2s की पावर -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1/3 इंटू पावर स्टार्टिंग पे, पावर में से एक कम कर दें -3, और -5/2 पावर जो है स्टार्टिंग पे, पावर में से एक कम कर दें तो -2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 1 इंटू 2 2 -3/2/3 s की पावर -3 माइनस माइनस प्लस 5/2 s की पावर -2। और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2/3 s की पावर 3 और प्लस 5/2 s की पावर 2। तो इस तरह जो है हमने एक थर्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व किया। हमारे पास जो वेरिएबल था s में था, वेरिएबल s में था क्वेश्चन में, फंक्शन में, तो हमने उसको डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास उस पर एंड पे जो है उसका आंसर है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, आपको होमवर्क के तौर पे आपने उनको घर पे जो है ट्राई आउट करना है ताकि इसकी मज़ीद प्रैक्टिस हो सके। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो आपने घर पे ट्राई करना है। r = 12/θ - 4/θ की पावर 3 प्लस 1/θ की पावर 4। तो r = 12/θ प्लस 4/θ की पावर -3 माइनस 1/θ की पावर 4। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो ये क्वेश्चन जो है आपने घर पे ट्राई करना है। और एक और क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। तो और क्वेश्चन है तो वो लिख देता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा करें। तो y = 6x की पावर -2 -10x और -5x²। y = 6x की पावर -2 और -10x और -10x -5x की पावर 3, 5x की पावर -3। तो ये क्वेश्चन है, आपने इसको जो है घर पे ट्राई आउट करना है। चेक इट आउट इन योर होम फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस रूल, पावर रूल फॉर नेगेटिव इंटीजर। और भी क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ। एक और क्वेश्चन है तो t की फॉर्म में लिख देता हूँ। f(t) = फंक्शन है वेरिएबल t में, इज इक्वल टू है t की पावर -3 और प्लस t की पावर -1 माइनस, तो t की पावर -3 प्लस 2/6 और 2/7 t की पावर -1 माइनस 8 t की पावर -2। तो ये क्वेश्चन है और आपने इन क्वेश्चन को जो है घर पे ट्राई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की जो है अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप जो है मेरे चैनल को आपने फॉलो करना है ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचा सकें। तो डियर स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स के पास नेट की फैसिलिटी नहीं है, अगेन आपने क्या करना है, इसी तरह डाउनलोड करके आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि मैं मज़ीद वीडियो आपके लिए बना सकूं, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इतनी गर्मी में आपके लिए मुझे फिर भी आना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं भी कुछ मिसिंग हो। तो मैं चाह रहा हूं कि जब यहाँ पे हम लेक्चर नोट करेंगे तो इसमें
कोई चीज़ मिसिंग ना हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।